मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ ઔષધમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોસુ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિયુત નિરાકાર. ભિક્ષા દેને મૈયા પિતા પંગલા કે છે, શરીરે ભોજ બનાવું ક્ષણ એકમાં, જમતા જાઓ જોગી રાજજી. મારી પાસે અત્યારે કાંઈ નથી, હું એક દૂધનું ખીર બનાવી દઉં હમણાં ઝરત, બીજું તો તમે ખરા નહીં રહી શકો. ખીર રે બનાવું ક્ષણ એકમાં, જમતા જાઓ યોગી રાજજી. માતા અમે ક્ષણમાં નહીં ખરા રહ્યા. હા હા હા. ચંદ્રભાઈ એ વખતે નાટક જોયા એ વખતે આમ ધૂન ચડી જતી હે અને પહેલે છે કેવી કહેવાય મીરાબાઈ એ વખતે નાની બંને ચોટની ત્યાંથી દેખેલા નાટક જોવા જતા ને વૈરાગ્ય જોવા જતા. અને પાછા એની ચોપડી હતી હાથમાં જતા. ચોપડી હોય ને લાવો ભાઈ તમારા બારાના જે લેતા હોય, ટિકિટના બારાના ચોપડીના બારાના તમને ખબર તો પડે ક્યાં બોલતે તું. હા હા મીરાબાઈ પણ એમ કે છો. હા હા બરાબર. એવું હતા એમ લોકોને વૈરાગ કઈ ઉદાસ થાય એવી કઈ ચીજ હોય ને. દ્રષ્ટિનો વિષય તો સર્વજ્ઞ સિવાય ક્યાં એ નહીં. समझ में आया. सर्वज्ञ ज्ञान आत्मा का होता है तो ज्ञान साथ ही वैराग होता है. ये वैराग के निमित्त है. निजा अधिकम आया ना ज्ञान वैराग शक्ति. अस्थि नास्ति क्या है कि अस्थि का भान हुआ है तो राग से नास्ति का वैराग हो गया. समझ में आया. एक ही ला वैराग वैराग निकल. हाँ हाँ पूर्णानंद नो नाद जहाँ प्रतीत में अनुभव में आया तो उसका ना ज्ञान हुआ, और जब ज्ञान हुआ तो पर से हट गया, राग से हट गया तो वैराग हुआ. ऐसी दो शक्ति ज्ञानी की निरंतर होती है. समझ में आया. निजर अधिकर्म आया ना तीजी चौथी का था. 93 कर्म निजरा, 94 અશુદ્ધ નિદ્રા, ભાવ નિદ્રા, પછી વૈરાગ ને જ્ઞાન શક્તિ ગાથા આવે છે. ભાઈ છે ને. હા હા એ વાતમાં આવી તો ક્યાંય છે ને બાબા.
પણ એ લોકોમાં વૈરાગની વાતો કરે. હા કે છે પ્રભુ ત્રણ લોકનો નાથ જેને વૈભવનો પાર નહીં, એ બળખાની જેમ છોડીને ચાલી નીકળ્યા. પ્રભુ તને નિર્ધન, પાઠમાં તો એ છે ભિક્ષા ભોજન, ભિક્ષા ભરોડા, ભિક્ષાથી અનાજ લેનાર સાધારણ નિર્ધન પ્રાણી તું. तेरे आत्मा का कार्य करना नहीं सोचते. आत्मा का कार्य कर. जैने अपना आत्मा का अन्न की भावना के बल से निस्वरूप को जानकर, जो निस्वरूप जाना कैसे ये भी साथ में लिया है. भेदाभेद भावना के बल से निस्वरूप को जानकर, आप जानने में आया, एकला ज्ञान किया शास्त्र, ऐसा नहीं. अंतर में भगवान आत्मा की एकाग्रता रूपी अभेद रत्न त्रय एकल है व्यवहार. उससे की भावना से निस्वरूप को जानकर व्यवहार नहीं कर सकती. भावना व्यवहार नहीं. મોક્ષ માર્ગ બે પ્રકાર કહેવાય છે ને, એ અપેક્ષા બે રત્ન છે. એ અપેક્ષા માર્ગ તો એક એમ આ કથન શૈલી આવે. એ પુરુષાર્થ સિદ્ધિમાં એમ આવ્યા છે, મૂળ શ્લોકમાં છે. નિશ્ચય વ્યવહારથી મુક્તિ થાય છે એવો પાછો શ્લોક જ છે. એ આ અપેક્ષા કથન સમજાય છે. કાંઈ વેદ રત્નત્રયમાં અશુભ ટળે છે, निश्चय रत्नत्रय में शुभाशुभ बे टलते हैं. ये अपेक्षा लिया है. भाई आवे છે ને અજ્ઞાસ ભાઈ હિંમતભાઈ, એ હોય છે અશુભ વચનાર્થમ એવો પાઠ છે 85 का टीकाમાં. अशुभ वंचनार्थम अस्थाने राग टालने को शुभ भाव आते हैं. બે બોલ છે ને તે ખબર છે ને 85 બે टीकाમાં. ये बुद्धिपूर्वक आते हैं ऐसा भी कहने में आता है व्यवहार से. निश्चय से तो यह समय आता है. समझ में आया? ये समय का कार्य है. जिसने निश्चय क्रमबद्ध बैठ गई बात, ये क्रमबद्ध का निर्णय द्रव्य के आश्रय से होता है. तो द्रव्य के आश्रय से जब जो समय का सम्यक दर्शन ज्ञान उत्पत्ति का काल है, वही समय इस समय का राग का उत्पत्ति का काल व्यवहार का है. समझ में आया? કહ્યું ને દ્રવ્ય સંગ્રહ 47 ગાથા. દુવ્યંપી મોક્ષ જેવું જાણે પાવણી નિયમા. 47 ગાથા દ્રવ્ય સંગ્રહ. दुव्यंपी मोक्ष જેવું જાણે પાવણી નિયમ. બે प्रकार को मोक्ष मार्ग ध्यान में नियम थी पामते हैं. समझ में आया क्या? कि जब अपना भगवान आत्मा का झुकाव हुआ अंदर से, वो निश्चय मोक्ष मार्ग, અને હજી પૂर्ण हुआ नहीं तो राग बाकी है. ध्यान में राग भी प्राप्त होता है, हम कहते हैं. समझ में आया? राग बाकी रहा, उसको आरोपित से व्यवहार मार्ग कहा. और निश्चय से तो क्रमबद्ध का निर्णय में तो जो ही समय निश्चय हुआ वही समय राग बाकी है तो राग है. इसलिए उसका ऐसा अर्थ नहीं कि व्यवहार है तो नीचे हुआ, व्यवहार से नीचे हुआ, ऐसा ही नहीं. समझ में आया? अपना स्वभाव का आश्रय करके जो दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ, वही उसकी उत्पत्ति का, मोक्ष मार्ग की परिणति का, उत्पत्ति का काल निरीक्षण था. समझ में आया? वही क्षण में राग बाकी रहा, उसको व्यवहार रत्न कहकर कहा है. आओ मार्ग है.
આ ભેદાભેદની વ્યાખ્યા નહીં. ભેદાભેદની ભાવના શું છે ને? ભેદાભેદ રત્ન ત્રય ભાવના એમ છે. એનો અર્થ એ થયો સ્વરૂપનું અભેદપણું થતા નિશ્ચય કહેવાય છે. એ તો કાલ કહ્યું નતું કે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રને એક એકને જયારે કહો તો એ સદબોધ વ્યવહાર થયા પર્યાય છે. અને ત્રણનું એક રૂપ થયું ત્યારે નિશ્ચય થયો. એ પણ પર્યાય છે તો એનો અભેદ થયો નિશ્ચય કયો. ખરેખર તો દ્રવ્ય નિશ્ચય નહીં, પર્યાય અભેદ થઈ એ પણ વ્યવહાર છે. હા 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 હા, કેવી શૈલી છે જો. શું કહ્યું? આ બે ઉપરની વાત આલે છે. ભેદાભેદ रत्नत्रय भावना यहाँ कहा तो भेद रत्नत्रय में तो विकल्प है, राग है, समझ में आया? पर ये साथ में आते हैं तो उसको भेदाभेद रत्नत्रय की भावना कहने में आता है. हाँ हाँ, समझ में आया? और उसमें तो ये सिद्धांत कि जो અત્યારે ऐसे कहते हैं ना कि व्यवहार થી नीचे होता है, तो ये बात उठी जाती है. जब अपना भेद रत्न त्रय का काल में जયારે निश्चय परिणति षटकारक से उत्पन्न होती है, वही समय राग बाकी रहा, वो भी षटकारक से परिणत राग. एक पर्याय में दो भाग षटकारक से परिणत होता है. सुन भाई, ओम से बापू मारक क्या किया फिर? जिस समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की परिणति उत्पन्न होने का काल है, निज क्षण है, वो समय उत्पन्न होता है. अरे वही समय राग बाकी है, वो भी उस क्षण उत्पन्न होने का काल है. तो एक समय में पर्याय एक અને भाग दो. एक पर्याय स्वनाश्रय जो उत्पन्न हुई है, एक तो निश्चय कहते हैं, करने आश्रय उत्पन्न हुई व्यवहार कहते हैं. समझ में आया? तो अँ भेदाभेद रत्न साथ लઈને आराधना क्या है? भावना. खरी आराधना तो अभेद नहीं है. अभेद पर्याय है, इन्हें निश्चय कहा. वो तो भेद से छूटने की अपेक्षा अभेद को नीचे कहा है. पर अभेद रत्नत्र की परिणति पर्याय है, ये द्रव्य की अपेक्षा से तो ये पर्याय भी व्यवहार है. परमात्मा चरिकम आयु निश्चय ते द्रव्य है, मोक्ष मार्ग जो साधना ये व्यवहार है. निश्चय मोक्ष मार्ग साधना वही व्यवहार है. हाँ हाँ हाँ, समझ में आया? हारी वातों बापू वितराग नो मार्ग है. हाँ हाँ हाँ, એટલી અપેક્ષાઓ પડે છે એમાં. એ બધી જ્ઞાનની બહોળતા રહે, જ્ઞાનની વિશાળતા है. हाँ हाँ हाँ, कहते हैं भेदाभेद में आयु एमांथी आगे. भेदाभेद रत्न की भावना के बल से निज स्वरूप को जानकर. हाँ हाँ हाँ, विनाशी के राज छोड़ा, अविनाशी राज के लिए उद्यमी हुई. हाँ हाँ हाँ, निराधन भगवान आत्मा, निज धन पूर्णानंद का लक्ष्मी भंडार भगवान. हाँ हाँ, ये આવ્યું નામ આવ્યું છે બોલ્યા મને શુદ્ધાત્મા રૂપી નહીં, સમગ્ર જ્ઞાનચાર્ય રૂપી અમૂલક રતન પર્યાયને લીધો. 17 આવ્યું છે सम्यक दर्शन के चारित्र रूपी अमूलक रतन से भरा निज शुद्धात्मा भावना रूपी झाग पर्याय को. हाँ हाँ हाँ, उससे यौवन असा महान तालाब तिर जाते हैं.
ભેદરત્નથી તળે તરે છે, પણ સાથી ભેદરત્ન છે એનો વ્યવહાર સાથે જ્ઞાન કરે છે. हाँ हाँ, अविनाशी राज के लिए उद्यमी हुई. यहाँ पर ऐसा व्याख्यान समझकर देखो, ऐसा व्याख्यान समझकर बाह्यांतर परिकर का त्याग करना मुनिपणानी विशेष दिशा देते हैं. बाह्य में दसरा आदि का, अंदर में राग का त्याग, बाह्य अभ्यंतर परिकर का त्याग करना, ये तो नास्ती से बात किया. अस्थि क्या? वितराग निर्विकल्प समाधि में ठरकर मुनिपणा. बापू मुनिपण अलौकिक बात છે ભાઈ. આ તો વ્યવહારની ક્રિયાઓ છે પંચમહાવૃતની, એ કઈ વસ્તુના સ્વરૂપમાં નથી. समझ में आया? अलिंगरण में क्या है? यति नो बाय व्यवहार ये आत्मा में है नहीं. बोलो भेद कीधो पूर्ण आत्मा. समझ में आया? 17 बोल છે, 20 बोल છે ને, 20 17 बोल છે. यति नो बाय व्यवहार ये पंचमावत आदि नो विकल्पी बाय व्यवहार है. ये अलिंग ग्रहण उससे आत्मा पकड़ने में नहीं आता. ऐसा लिंग उसमें है ही नहीं. समझ में आया? यतिनी बाह्य क्रिया का जिसमें अभाव है, ऐसा भगवान अलिंग ग्रहण कहने में आता है. वे यहाँ कहते हैं कि जी यतिनी बाह्य क्रिया है उसमें अभाव है, वो बाह्य क्रिया से निश्चय प्राप्त होता है, ऐसा कहाँ से आया? समझ में आया? मारक भाई बहुत जणों लोग आज्ञम ना अर्थ ने समझे नहीं, अपनी दृष्टि से आज्ञम वाँचे. समझ में आया? અને સત્ય વાતને ઉડાડી દે. बाह्यंतर परिकर का त्याग करना, અને वितराग निरुक्त समाधि में ठर कर दुर्धर तप करना. એટલે मुनि પણ આવો તપ શબ્દ दीक्षा कल्याणी का तप कल्याणी कहते हैं ना, तप कल्याणी कहते हैं. वितराग निर्विकल्प शांति में ठहर कर दुर्धर तप करना. अलौकिक रीति उग्रता पुरुषार्थ से लीन होना. चारित्र में उग्र पुरुषार्थ हो तप. चारित्र में उग्र पुरुषार्थ हो तप. चारित्र है उसको उग्र तप होता है. तप्यंती इति तप, जिसमें अतीन्द्रिय आनंद तपे. शुभ है, सुंदर ऊप, सोना में जब गेरू लगते हैं ऊप होते हैं, ऐसे भगवान आनंद की ऊप, आनंद का ऊप चढ़ते है उस अंदर में. अरे आई बात मुझे समझ में आया? उसका नाम भगवान तप कहते हैं. क्या पंडित जी? प्रतपन तप, स्वरूप में विश्रांति, निस्तरंग विकल्प का तर्क नहीं, उसमें तपना ये तप है. लोग बता अप्पा करे ना करे ना अप्पा के धूड़े नहीं त्या. यह सारा हुआ. उसमें से करना अंदर में ध्यान में रहे, उसका नाम सारांश है शास्त्र एम कहता. 118 ये બધા ટીકા મેં આખી ટીકા લખી દીધી. 119 हे जीव तू भी जिनराज नहीं, श्री जनराज नहीं तरह हार कर्म का नाश कर मोक्ष को जा. प्रभु तने मोक्ष में लई जवा मांगे છે.
આ સંસાર દશામાં દુઃખમાં નહીં. समझ में आया? जिनराजनी पेठी आठ कर्मों का नाश मोक्ष जा, ऐसा कहते हैं. पावई दुखों महंतु तुम जिय संसारी भमंतु अठवी कमई निदलवी वचई मुखु महंतु. हे जीव संसार वन में भटकता हुआ, संसार रूपी 84 ना अवतार में भव सिंधु में भटकते हुए भगवान भव सिंधु में भटकते हुए हवे छोड़ के थे. महान दुख पावेगा. हे जीव तुम संसार वन में भटकता हुआ महान दुख पावेगा. इसलिए ज्ञानावरण आदि 8 कर्म का निर्दल नाश करके, निर्विशेष दल नाश करके महानत मोक्ष, सबसे श्रेष्ठ मोक्ष, पूर्णानंद ની પ્રાપ્તિ ત્યાં જા. વ્રજ છે ને, વ્રજ એટલે જા. संसार महावन भटकता दुख में उसको छोड़कर भगवान पूर्णानंद की प्राप्ति रूपी मुक्ति, संसार दुख थी रहित અને पूर्णानंद की प्राप्ति सहित ऐसा मोक्ष त्या जाने भाई. भाई तारू अविनाशी स्थान तो ये है. समझाणु कहा है भावार्थ. निश्चय कर, यथार्थ से देखो तो संसार से रही शुद्धात्मा. उदय भाव से तो रही भगवान आत्मा है. उदय भाव एक संसार है. धर्म क्षेत्र का संसार. उदय भाव जिसमें नहीं उसको नाम आत्मा कहते हैं. नियमसार. शुद्धात्मा शुद्ध बात है. निश्चय कर संसार से रही शुद्धात्मा. उदय भाव से रहित ऐसा शुद्धात्मा, परम परिणामिक भाव सहित ऐसा शुद्धात्मा. सारी बात है. उससे जुदा त्रिपटी बात करते हैं टीका में. एक तो संसार से रहित शुद्धात्मा, उससे जुदा. संसार उससे जुदा लेना है. द्रव क्षेत्र का भव भाव 5 तरह के परावर्तन संसार. लो, पहले तो कहा था कि 5 प्रकार का संसार है शुद्धात्मा. शुद्धात्मा की व्याख्या करी ने પછી शुद्धात्मा से जुदा द्रव क्षेत्र का भव भाव. ये शुभ शुभ भाव भी शुद्धात्मा से जुदा, भाव शुद्धात्मा से जुदा, द्रव क्षेत्र का शुद्धात्मा से जुदा. ये शैली बदी है. यही शैली है. ये नहीं एकदम समय सार नहीं परंतु જે બોટ આવતો હોય એનાથી વિરુદ્ધ કહી ને પછી એનાથી વિરુદ્ધ એ શૈલી છે. ખબર છે એને 3 પ્રકારનું એક જ્ઞાન થાય. દ્રવ્ય પરમાણુવાદી ક્ષેત્ર બાહ્ય કાળ ભાવ સ્વદાદીનો ભાવથી પણ રહિત ભગવાન છે. ભાવ શુભ અશુભ ભાવ એ સંસારનો ભાવ है.
જો ત્યાં કઈ તો પેલા બે રત્નોત્તરી ના પછી શુભ શુભ ભાવ એ સંસારનો પંચવર્ષ પરાવર્તનનો ભાવ એ. હા, સમજ में आया? हाँ, જે ભાવે તીર્થંકર ઉદબંધ એ ભાવ પણ સંસાર ભાવ है. हाँ, हृदय भाव है. समझ में आया? 148 प्रकृति ने ઝેરના ફળ कहा है. 148 प्रकृति कर्म नहीं, 8 नहीं है. ઝેર उसमें से फल पाते ઝેर. हाँ हाँ हाँ. आत्मा अमृत का फल पाके ऐसा आत्मा है. अमृत न चिंतामणि है भगवान. अमृत चिंतामणि अंदर में एकाग्र था एटली आनंद प्रगट हो ऐसा चिंतामणि स्तंभ है प्रभु. द्रव क्षेत्र का भव भव ने भाव भाव देखो पांचे संसार कीधो. भवे संसार ने भव भावे संसार. हाँ, शुभाशुभ संसार. इस तरह पंच परावर्तन संसार उसमें भटकता हुआ. हाँ हाँ, निसहाय पर निसहाय बिना एकलो भटके छे. समझ में आया? चारों गतियों के दुख पावेगा. देखो देव ने पण दुख गतियों ने दुख में ले लिया. हाँ हाँ, चारे गतियों का दुख एम नहीं कि स्वर्ग में सुख है नरक में दुख है. हाँ हाँ, समझ में आया? उसने भटकता हुआ चारों गतियों के दुख पावेगा. हाँ हाँ हाँ, ये स्वर्ग में भी दुख पामेगा. राग क्लेश है ત્યાં. हाँ हाँ, निरोध राशि में अनंत काल तक रोड़ेगा. हाँ, निरोध राशि अनंत काल तक रोड़ेगा. શુદ્ધ પરિચિત અનુભૂતા આવે છે ને ચોથી ગાથા. તો નિગોધના જીવે રાગની કથા સાંભળી છે ને ભોગવી છે એ સંસાર એમ કે છે. શુદ્ધ પરિચિત અનુભૂતા સવસ્વી કામ ભોગ બંધ કથા. બધા પ્રાણીએ નિગોધથી માંડી સબને કામના રાગની ઈચ્છાને કરતા અને ભોગતા એ વાત બધા જીવે સાંભળી છે, પરિચયમાં આવી છે, રમણતામાં વેદનમાં આવી છે. અનુભૂતિ નિરોધના જીવના ભાવ વેદનમાં છે. હા, સમજમાં આવે? સમજમાં સમજાય છે કાંઈ? હા હા, એક શરીરમાં રાગનો કણ જેટલું શરીર કણ અસિંગ શરીર એક શરીરમાં અનંત નથી. બધાનો શ્વાસ એક આવે. હા હા હા, છતાં એક એક આત્માએ રાગની વાત સાંભળી છે, પરિચયમાં આવી વેદનમાં આવી. સાંભળી ભલે ન હોય પણ એનું ફળ આવ્યું ને વેદનમાં. સમજાય છે કાંઈ? એ ચાર ગતિના દુઃખો આ ભટ્ટ રલેગા. એ માટે શું કરવું એ વિશેષ કે છે. यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह
यह स्वर्णपुरी अति पावन है।